Before choosing a pediatrician, first of all, you have to see the availability. If pediatrician is available round the clock, if he is available on holidays also, night time also basically, then in emergencies also, then he is the best. Before COVID time, I used to reach home by 11:30, sometimes 12:30, also midnight. This COVID period, if I reach home 9:30, my wife, my children ask, "Papa, jaldi aa gaye? Patient nahi hai kya?" Most of the parents, what they do is, the child is on mother feed. After 6 months, वो कहते हैं जी 4 बार तो मैं अपना फीड कराते हैं, 2 टाइम मैं बॉटल से दूध दे देती हूँ. फिर मैं देन आया खाना, हाँ खाना 4 बार खाता है. तो मैं कहता हूँ जी बाहर इतने लोग बैठे हैं, मैं उनको बुला के बोलूँगी आपका बच्चा 6 टाइम दूध पीता है, 4 टाइम खाना खाता है, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा. मेरे पास बहुत पैनिक कॉल आती हैं रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, मैं आपके पास लेके आऊँ, मैं कैलाश कॉलोनी से बोल रहा हूँ, मैं ईस्ट, मैं कहूँ जब तक आप मेरे पास आओगे, जब तक बच्चा रोता रहेगा, मैं कोई दवाई बता देता हूँ. अगर आपका बच्चा चुप ना हो, देन यू कम टू मी बेसिकली. पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे को ठंड लगी. मुझे ठंड तो लगी, हुआ क्या जी? हरे रंग के स्टूल कर रहा है. ये तो प्रैक्टिस में सीखना पड़ता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है बेसिकली. देखिए ऐसा है कि इंडिया में एवरीथिंग इज फिक्स्ड. जो पैदा होंगे तो साबुन देना है, शैम्पू देना है, सोप लोशंस देना है, हो गया जी. कोई नाना नानी दादा दादी आते हैं, कपड़े ला दो, डायपर ला दो, सब फिक्स है. वन कॉमन मिथ इज, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा रात में दांत किटकिटाता है, मेरे बच्चे को कीड़े हो गए, मेरा बच्चा सलाइवा गिराता है, मेरे बच्चे को कीड़े हो गए, मेरा बच्चा खाता नहीं है, उसको कीड़े हो गए, मेरा बच्चा ज़्यादा खाता है, उसको शरीर में नहीं लग रहा, उसको कीड़े हो गए बेसिकली. So I'm one of the mother. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि कीड़े वाली कंपनी की मौज है, क्योंकि एक पेशेंट जो है अपने बच्चे को दिन 1 महीने में 10 बार कीड़े की दवाई, जब कुछ नहीं सूझता तो कीड़े की दवाई से खिला देते हैं. कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी, एक्टिविटी, फीडिंग ऑफ द चाइल्ड, यूरिन आउटपुट, एवरीथिंग. Hi, welcome to you all to the channel Today's Mind. I am sure that you must have heard of the healthy kids and the happy parents. I hope you got to know whom I am interviewing today. Yes, you are right, it's a pediatric. Pediatric really makes a very important role in a kid's life. Hello everyone, my name is Dr. Shekhar Vashisht. I am a child specialist. I am attached to Moolchand Hospital. I have my own clinic at Jangpura Bhogal. And I see children from 0 to 18 years of age, and I'm in practice from last 20 years. So doctor, how you start your day? Like everyone has a 24 hours in a day, but some people are very, unmanageable for them to what to do, when to do, how to do, and you are a doctor, so how you manage your day? Basically, I get up early in the morning. I get up at 7 o'clock, and after finishing my routine activities, I go to Moolchand Hospital. I do my morning rounds and I do my OPDs there, and from there I rush to my clinic and I spend my time at clinic till 2:30. Then I come home, take lunch and again go to Moolchand Hospital for the evening rounds. Then evening OPD at my clinic from 6 to 9 p.m. So what is the environment of your house, like your kids, your wife? What are the pros and cons? I'm sure there must be pros and cons being a doctor. बच्चे कहते हैं why you are coming home. Yeah, that's all. And mostly before COVID time, I used to reach home by 11:30, sometimes 12:30, also midnight. And now this COVID period, if I reach home 9:30, my wife, my children ask, "Papa, jaldi aa gaye? Patient nahi hai kya?" So this is the scenario. But Sunday I spend evening with my family. Doctor profession is basically 24 hours. Daytime I am physically available, and night time over the phone I give consultation to my patients. So nice, because nowadays I think very few doctors are really genuinely, they give a consultation on phones. They usually call us, okay, visit the clinic. If it's night, okay, visit the clinics. And when you visit the clinics on the in the night, they really
they make a hype of that illness, and they charge you, I think abundant. Even many of you also have faced such problems. So when you visit the doctor, the problem is minor, but the way of doctor is describing you and all, it's like ooh. So but I'm sure, because I personally experienced with Dr. Vashisht, and that is the only reason I opt this doctor, and I'm after his life for my kids, because he really helped me out. Matlab, whether it's a festival day, so that's really very good about him. And so doctor, it's like how to choose a pediatric, because people are living like here there. So what points they should consider while selecting their pediatric? See, I see patients from different parts of Delhi. Some patients come out from outside Delhi also, Noida, Ghaziabad, Faridabad, Ballabgarh, Bahadurgarh, Palwal. Even patients come from Jammu and Kashmir also. So, basically, before choosing a pediatrician, first of all, you have to see the availability. If pediatrician is available round the clock, if he is available on holidays also, night time also basically, then in emergencies also, then he is the best. But if he is giving consultation only during night time and during daytime and night time, if he tells you go to the hospital, then better to change the pediatrician. Second thing is nearby doctors. Basically, you have to choose. That is the best. If my patient is coming from Palwal, I tell them find a good doctor near me, because in case of emergency, you will spend so much time on traveling. So nearby vicinity is very important. 24 hours availability, even over phone, is good. Doctor should give time to the patient also basically. He should listen to the problem first and then write the treatment. So in pregnancy only we should start finding a good pediatric for our coming child? No, that is not possible basically. Most of the time after delivery, the mother goes to the pediatrician who was there at the time of the delivery. If mother is satisfied, then she usually continues with the same doctor. If she is not satisfied, then she asks friends, neighbors कि आपके पीडियाट्रिशियन कौन है, मैं अपने डॉक्टर से आई एम नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन प्रेगनेंसी में पहले ही वो इतने परेशान होती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, तो उनको पता ही नहीं लगता. Like which pediatric suits the child, that also matters? Definitely yes. But most of the mother goes to the pediatrician who attended the delivery. So what makes you satisfied over your job? जब पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक हो गया, मैं सेटिस्फाई हूँ, या मार्केट में मिलता है, कहीं भी मिलता है, कहता है डॉक्टर साहब आपने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं होगा, कहता है डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना नहीं होगा. और सबसे बढ़िया बात है, जहाँ जहाँ लेके मैं अपने बच्चे को विजिट्स पर जाता हूँ, आई वेंट टू अंडमान, आई वेंट टू मालदीव्स, आई वेंट टू सिंगापुर, आई वेंट टू रणथंबोर, हर जगह मेरा पेशेंट जरूर मिलता है. पापा कहते हैं, बच्चे कहते हैं पापा आप जहाँ जाते हो वहाँ आपका पेशेंट कोई ना कोई आपसे मिलता जरूर है. और पेशेंट रिकॉग्नाइज करके मेरे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब कि आप मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, मैं इतना परेशान था, आप इतने लाइटली बताते हो, आराम से बताते हो, नहीं तो मैं परेशान रहता था. उस समय मैं सेटिस्फाई रहता हूँ. So that is the time. जब पेशेंट रियली दिल से बोलता है कि इनफैक्ट कई लोग इन्हें शादी में भी मिलके बोलते हैं, जैसे कि मैं हूँ थैंक यू डॉक्टर. और उस दिन बल्कि नमिश वाज हैविंग अ वेरी हाई फीवर एंड वी वेंट टू सम वेडिंग एंड आई वाज सो वरीड अबाउट हिम. और मतलब एक गॉड क्रिएट हो गए वहाँ पर, वो हैं डॉक्टर वशिष्ठ, वहाँ पर वो वहीं थे. तो मतलब रियली गुड. सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको आपके पेशेंट बहुत जगह मिल जाते होंगे. सो समटाइम्स वी फाइंड अ child of any age, you can say, or adolescent, newborn, start crying suddenly without any reason, I mean reason should be there, but what should be our first act towards him or her? देखिए, up to 6 months there are 3 common causes. पहला है या तो हंगर क्राई हो सकता है, या ईयर एक हो सकता है, या स्टमक एक हो सकता है बेसिकली. ठीक है ना, दीज आर द 3 कॉमन कॉजेज.
तो अगर बच्चा रात में रो रहा है, मेरे पास बहुत पैनिक कॉल आती हैं रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, मैं आपके पास लेके आऊँ, मैं कैलाश कॉलोनी से बोल रहा हूँ, मैं ईस्ट, मैं कहूँ जब तक आप मेरे पास आओगे, जब तक बच्चा रोता रहेगा, मैं कोई दवाई बता देता हूँ। अगर आपका बच्चा चुप ना हो, देन यू कम टू मी बेसिकली। और दूध तो बच्चा पिला ही रहे होते हैं, भूखा तो बच्चा रह ही नहीं सकता, या तो माँ का दूध पी रहा होता है या टॉप फीडिंग कर रहा होता है। और अगर छोटा बच्चा रो रहा है तो 2 ही कारण हुआ, या तो पेट दर्द हुआ है, कान दर्द हुआ। अगर कान दर्द होगा तो यू टेक द डिटेल हिस्ट्री, उस समय पूछ लो जो बच्चे को खांसी जुकाम है। अगर बच्चे को खांसी जुकाम है देन इट गोज मोर इन फेवर ऑफ ईयर एक। अगर बच्चा खांसी जुकाम नहीं है, सडन क्राई हो रही है कि 1 घंटे पहले चाइल्ड वॉज प्लेइंग, नो कफ, नो कोल्ड, नो फीवर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज इन फेवर ऑफ स्टमक पेन बेसिकली, इन्फेंटाइल कोलिक। तो फिर हम उसके लिए गैस की दवाई बता देते हैं और उससे बच्चा हो जाता है। नहीं होता तो भी पर्सनली सी द पेशेंट। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, दिस इज क्वाइट कॉमन टिल 6 months ऑफ एज। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, पता नहीं इंडिया में ही है या पूरे वर्ल्ड में है, कि इफ़ चाइल्ड क्राइज फीड हिम विद मिल्क, सो मिल्क इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, इज इट ट्रू? लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली वी यूज टू गिव, अच्छा बच्चा रो रहा है, ओके लेट्स गिव अ मिल्क। सो उससे कोई डाइट प्लान या कुछ? देखिए, अप टू 6 months मिल्क इज इम्पॉर्टेंट। 6 महीने तक चाइल्ड शुड बी ओनली ऑन ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली। आफ्टर 6 months यू स्टार्ट वीनिंग द चाइल्ड। वीनिंग मीन्स कि धीरे धीरे दूध घटाते जाओ एंड इंक्रीज द सेमी सॉलिड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है ना। पेरेंट्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स व्हाट दे डू इज द चाइल्ड इज ऑन मदर फीड। आफ्टर 6 months वो कहते हैं जी 4 बार तो मैं अपना फीड कराते हैं, 2 टाइम मैं बॉटल से दूध दे देती हूँ, फिर मैं देन आया खाना, हाँ खाना 4 बार खाता है। तो मैं कहता हूँ जी बाहर इतने लोग बैठे हैं, मैं उनको बुला के बोलूँगी आपका बच्चा 6 टाइम दूध पीता है, 4 टाइम खाना खाता है, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, और आप सोचते हो कि मैं आप पर विश्वास कर लूँ बेसिकली। सो व्हाट वी शुड डू इज़ बेसिकली 6 महीने के बाद डिक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क, इंट्रोड्यूस सॉलिड, सेमी सॉलिड टू द चाइल्ड बेसिकली। माँ का दूध है और साथ में आप उसको खाना देना है। दूध इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा दूध देने से चाइल्ड गेट कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, और दूध में आयरन नहीं होता, जिसकी वजह से चाइल्ड बिकम्स एनीमिक बेसिकली। इज़ इट लाइक ट्रू कि जैसे बच्चा रिड्यूस करना शुरू हो जाता है, कई बार वेट हम देखते हैं तो सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, हर कोई कहता है अरे बहुत पतला हो गया है, इसको दिखाओ, इट्स रियली मैटर टू वरी अबाउट इट। व्हाट इज द मेन पॉइंट वी शुड कंसिडर? इफ इट्स ओके देन लाइक एवरीथिंग। देखिए, हिंदुस्तान में द मोस्ट कॉमन थिंग है, आप किसी के घर जाओगे, आप ये बोलोगे आपका बच्चा कमज़ोर हो गया, आप ये नहीं बोलोगे आपका बच्चा मोटा है। अगर आप बोलोगे कि आपका बच्चा मोटा है तो आपको घर में भी नहीं घुसने देगा बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर आपको दूसरों के कहने से, यू डोंट हैव टू जज योर चाइल्ड कि जी हाँ जी मेरा बच्चा पतला है, मेरा बच्चा मोटा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो आते हैं घर क्लिनिक पर जैसे कि डॉक्टर साहब पड़ोसी एवरीवन इज सेइंग आपका बच्चा छोटा है, गो टू द डॉक्टर, आप दूध नहीं पिला रहे, खाना नहीं खिला रहे। व्हेन आई सी द वेट एंड हाइट तो पता लगा परफेक्ट है। मैं पूछता हूँ जी कितना है, जैसे कि डॉक्टर साहब कितना वेट है, मैं कहता हूँ 12। नहीं, पिछले बार आए थे तो हम 14 थे। मैंने दिखाओ पर्ची में दिखाता है तो 11 होता है। आपको लॉजिक इज बेसिकली चेक द वेट फर्स्ट, चेक द हाइट फर्स्ट, डोंट जज कि नहीं जी मेरा बच्चा देखने में लीन एंड थिन लग रहा है। इफ वेट कम है पहले से, देन डेफिनेटली यू कैन से कि चाइल्ड इज लूजिंग वेट, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज कि क्यों बच्चे का वेट गिर रहा है। वो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है या कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट कराना है। So and after like a newborn child, when his umbilical cord falls down, so what are the we should be precautions? देखिए, पहले जब अबाउट 10-15 years बैक जब कॉर्ड रहती थी तो मोस्ट ऑफ अस वी यूज टू से कि बीटानिल लगाओ, अप्लाई न्यूज़पोरिन पाउडर, बट नाउअडेज वी से कि कीप इट ड्राई, डोंट पुट एनीथिंग ऑन द नेवल, और एक बार वो गिर जाए देन यू हैव टू क्लीन इट विद स्पिरिट स्वैप ट्वाइस अ डे फॉर 3 days. Just no need to take care, so to prevent keep infection bacteria basically. But before falling off, you don't apply anything. No betadine, no neosporin, nothing. Is there a particular time like a child should visit a pediatric? A mother should really take his or her child to a pediatric. First 2 years of life, basically there are so many vaccinations. So बच्चा जाता ही रहता है डॉक्टर के पास में भी in a month or 2. And after 2 years, basically, once in 3 to 6 months, they should go to the pediatrician basically for the routine checkup for weight and height. Till which age a child visit a pediatric? Child specialist is basically from 0 to 18 years. Adolescence comes under pediatrics. So it is 0 to 18, from birth till 18 years age. And most of the parents, they
थिंक कि 10 साल का हो गया अब तो फिजिशियन के पास जाते हैं, 12 साल के बाद तो आते ही नहीं है. इट इज स्टिल 18. Okay, 18. And is there any thing you will tell us about the soft spot on the child's head? We call it anterior fontanel basically. Anterior fontanel means कि वो जो आपकी bones होती हैं वो unite नहीं होती, so you see some space, basically you feel some space over this portion of the head, and it basically closes down by 9 to 18 months of age basically. If it remains open after 18 months of age, then it is a matter of concern. It may be due to the weakness, it may be due to the vitamin D deficiency, it may be due to the thyroid problem. Then you have to investigate after 18 months. So, and if it closes before 9 months, then also you have to investigate. Is it important to be a comfortable language with the pediatric? Like if you are choosing your, as like we have talked about it, so a person should be comfortable with the language. Most of the time you should speak them in the local language basically. ठीक है ना, that is most important. अब जैसे I see Afghani patients also basically. I have learned some Afghani. उनके साथ मैं थोड़ा थोड़ा अफगानी में बात करता हूँ. हाँ, वो उनका कंफर्ट लेवल बढ़ता है. आपस में बात करते हैं तो मुझे पता लग जाता है, तो उससे पहले वो पूछते हैं आई आंसर देम, तो वो भी खुश होते हैं कि ठीक है कोई डॉक्टर हमारी बात समझ रहा है. नहीं तो समटाइम्स दे थिंक कि हम डॉक्टर को एक्सप्लेन कर पाए नहीं कर पाए क्या प्रॉब्लम थी. व्हेन यू स्पीक देम इन देयर लैंग्वेज तो उन्हें लगता है कि ठीक है डॉक्टर हमारी बात समझ रहा है. तो मतलब आई नो कन्नड़ा आल्सो ये भी एक टैलेंट हो गया डॉक्टर का, मतलब कि लैंग्वेज कोर्सेज भी उसके मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक डायरिया इज लाइक इट्स वेरी कॉमन डिजीज, सो हाउ कैन वी कम अप विद दैट? देखिए डायरिया जो है, डायरिया इज अ बेसिकली आई से इज ब्रेड एंड बटर फॉर पीडियाट्रिशियन बेसिकली. इफ आई सी 10 पेशेंट्स इन अ डे, 4 suffering from diarrhea basically. Because of the dirty water, it is because of the dirty food which they consume outside. गोलगप्पे खाते हैं, सब कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है. They don't boil the water, रेहड़ी से पानी पी रहे हैं. जी हम बच्चे को फ्रेश जूस पिलाते हैं. फ्रेश जूस में बोलते हो निकालते कैसे, उन्होंने आपने उनका कुछ साफ़ कराया, उनका डिस्पोजेबल ग्लास था नहीं, मिक्सी साफ़ थी नहीं, हैंड वॉश थे नहीं थे, तो इस सबसे डायरिया प्रॉब्लम होती है. डायरिया प्रॉब्लम बेसिकली स्टिल अ लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी इन अवर नेशन बेसिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर डायरिया को लेके ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है, साफ पानी होता नहीं है, ORS का ध्यान होता नहीं है, तो काफ़ी डेथ्स होती हैं हमारे इंडिया में डायरिया से लेकर. तो डायरिया में मेन थिंग ये है कि दवाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ORS, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो. जैसे वो कहते हैं ना दवाई भी और कढ़ाई भी, वैसे ही दवाई के साथ साथ ORS इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर ORS नहीं देंगे, पेशेंट कहते हैं जी मैं 4 दिन से दवाई दे रहा हूँ, ORS तो दे ही नहीं रहा जी. ORS देता तो और लूज मोशन बढ़ जाते हैं. एक डॉक्टर ने बोला ORS देना मत, जितना पिलाओगे उतना नीचे से निकल जाएगा. यू हैव टू रिप्लेस द वाटर लॉस. डायरिया में द मेन ट्रीटमेंट इज 5 से 7 दिन लेके वो ठीक हो जाएगा, और साफ सफाई का ध्यान रखिए. अब जैसे आपने बताया कि ORS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इज़ इट लाइक कि हम एक कॉमन डेज में जैसे रेगुलर डेज जो हैं उसमें भी हम अपने बच्चे को बीच बीच में ORS नहीं ORS नहीं दे सकते. अगर आप नॉर्मल रूटीन में इफ यू गिव ORS, it can increase the sodium content, it can cause the electrolyte imbalance. Diarrhea is important only in case of dehydration, only in case of diarrhea. Prevent diarrhea. To prevent diarrhea, you have to eat Stay healthy food. ना diarrhea is basically it spreads through fecal route. गंदा खाने पीने से फैलता है, तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है. बर्तन धो के रखने हैं, हाथ धोने हैं, बाहर का खाना नहीं खिलाना, बॉटल साफ करनी है, बॉटल फीडिंग डिस्कार्ड करनी है, वही सब कुछ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट्स वैक्सीनेशन विच रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, एंड यू नो मैनी पीपल अवॉइड इट ऑल्सो. डॉक्टर, आई मीन इज इट लाइक पेशेंट्स विद यू ऑल्सो हु अवॉइड्स वैक्सीनेशंस? देखिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बर्थ टिल 10 years एज बेसिकली. सम पीपल थिंक कि 2 साल हो गए उसके बाद तो वैक्सीन ख़त्म होगी. वैक्सीन 5 साल में भी होती है, 10 साल में भी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक कि जी नहीं इट्स वेस्टेज ऑफ मनी. 4000 का वैक्सीन है, 3000 का वैक्सीन है, 5000 का वैक्सीन है. दे थिंक कि मेरे बच्चे को थोड़ी कुछ बीमारी होनी है. जिसको होती है उसको पता लगता है बेसिकली. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो मेरे कुलीग ने बताया था कि एक उसके यहाँ एक पेशेंट आता था जो उसके सर्वेंट का नोन टू था, एंड ही वॉज नॉट वेरी अफोर्डिंग. वो आता डॉक्टर साहब वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा देते थे. एंड देयर वॉज अ वैक्सीन कॉल्ड मेनिंगोकॉकल वैक्सीन which is a optional vaccine, which is a costly vaccine, which cost around 5,000 rupees.
तो डॉक्टर ने सोचा वैसे भी ऑप्शनल है, अफोर्ड करेगा नहीं, उसको बताई नहीं ना उसको लगाई, एंड द सेम चाइल्ड गॉट मेनिंगोकॉकल डिजीज आफ्टर 1 year. दो द चाइल्ड सर्वाइव. तो वो वहाँ पर आया, डॉक्टर साहब आपने ये वहाँ हॉस्पिटल में कह रहे थे आपने ये वैक्सीन लगाया. उसने बोला कि डॉक्टर साहब, उसने बोला कि ये वैक्सीन महंगी थी और ऑप्शनल थी तो मैंने लगाई नहीं. तो यार डॉक्टर साहब ये आपका काम नहीं, आपको मुझे बताना चाहिए था कि इतने की वैक्सीन है, 5,000 की वैक्सीन है, ऑप्शनल है नहीं है, वो मैं डिसाइड करता कि लगवानी ज़रूरी है या नहीं है. सेकेंड थिंग इज पेशेंट से कि जी डॉक्टर साहब ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वी गेट फ्री वैक्सीन, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम वहीं से लगवा लेते हैं, यहाँ क्यों इतने पैसे खर्च करें. तो मैं कहता हूँ जी वहाँ से लगा लीजिए, लेकिन जो वैक्सीन वहाँ नहीं मिलती उसके लिए गो टू द प्राइवेट सेटअप. अगर पीपल समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे आके उनको एक बार अगर बीमारी होगी तो वैक्सीन से ज़्यादा दे हैव टू स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड. बेसिकली अपनी डिलीवरी के लिए गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, बट वैक्सीनेशन के लिए दे गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. डिलीवरी दे स्पेंड 2 लाख रुपीज़, वैक्सीनेशन दे कांट स्पेंड 2,000 3,000. वही बात कहता हूँ मैं कि जब अभी बच्चे का ध्यान रखोगे तो बड़े होकर आपका ध्यान रखेगा. लोग कहते हैं जी बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं रखते. माँ बाप कौन सा बच्चे का ध्यान रख रहे हैं. 1 महीने में छोड़ के कहते हैं जी मेरे को इंपॉर्टेंट काम था, मैं बाजार चली गई, लैक्टोजन दे दिया. मैंने जी बड़े होके बच्चे कहेगा मम्मी बीमार थी, मेरे को इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं चली गई, आगे मम्मी को देखूंगा, अभी क्यों देखूँ मम्मी को. मैंने जी बच्चे से इंपॉर्टेंट काम कौन सा है बताओ आप मुझे. Exactly, मतलब to feed him also is very important part for us. Feeding is very important in 6 part months. for a child. This is also a fact कि many people can't afford the private things. नहीं तो then they should go to the government hospital. Government hospital में what all is available, they should take that vaccine. Some people think कि मेरे बच्चा will get fever, परेशान होगा 2 दिन 3 दिन, so उसके वजह से भी they avoid the vaccine. But this is not correct. Vaccine तो दिलानी is very important. देखिए चिकन पॉक्स, not चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन. पोलियो खत्म हो गया इंडिया से, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन बेसिकली. अब कोरोना में है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन. सो वैक्सीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट इग्नोर, you should get it timely. And what time, like कई बार होता है हम लोग like you also give a time and because of my husband sometimes we delay. और फिर अभी ये जैसे कोविड भी हो रहा था वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अगर डिले हो भी जाए बट यू शुड, पेशेंट आते हैं डॉक्टर भी ये वैक्सीन 6 महीने पहले डेट थी, अब तो उसकी ज़रूरत नहीं, अब तो टाइम निकल देता. आई टेल देम कि ये तो दिस इज सिंपल एज द इंश्योरेंस ऑफ योर कार. अगर आप इंश्योरेंस आप नहीं कराओगे, अगर पुलिस वाला 2 साल बाद आपको पकड़ेगा तो आपसे पैसे लेगा ना. तो इंश्योरेंस करानी तो ज़रूरी नहीं है, तो वैक्सीन लगानी ज़रूरी है. अभी 6 महीने में बीमारी नहीं हुई तो ये ज़रूरी थोड़ी आगे बीमारी ना हो. तो जब आप आए हैं तो यू शुड गेट द चाइल्ड वैक्सीनेटेड बेसिकली. तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिले हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे आके भी यू शुड नॉट मिस इट, यू शुड कंप्लीट इट. डिले टिल इट शुड बी, मतलब इससे होता है ना कि मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. मैक्सिमम और मिनिमम टाइम इट शुड बी ऑन टाइम. लेकिन बिकॉज ऑफ सम अगर पर्सनल रीज़न है, सपोज अफोर्डेबिलिटी है, सम फंक्शन इन द फैमिली, सम डेथ इन द फैमिली, सम चेंज इन द प्लेस, तो जितना आप कर सकते हो मिनिमम डिले उतना कर सकते हैं, लेकिन जितना हो आप करवाइए ऑन टाइम. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज कोविड में इट्स एडवाइज्ड कि डोंट विजिट अ डॉक्टर क्लिनिक अंटिल अनलेस इज वेरी वेरी. That is correct, but now COVID it has come down. तो अब जो वैक्सीन मिस हो गई है, you should cover all those vaccinations. They are important part of the life basically. You guys can go and cover up your last vaccinations of your child. एक कंसर्न WHO का ये भी था कि अब बिकॉज ऑफ द कोविड धीरे धीरे जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनके केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, बिकॉज कोविड में वैक्सीनेशन नहीं हुई है. सो जो बीमारी अभी हमने दबा के रखी थी जैसे डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, खसरा, चिकन पॉक्स, उनके लेवल्स इंक्रीज होने लगेंगे क्योंकि 1 साल में वैक्सीनेशन जो नहीं हुई उसकी वजह से. ये भी WHO का कंसर्न है. ओके, तो इसलिए वैक्सीन लगवाइए जिससे ये सारी बीमारियों से हमें ना, मतलब हम लोग वो सोचते हैं जो हमारे सामने, बट वो पीछे वाला हमने इग्नोर कर दिया जो मेन है. Right. So one more question is there, which is really important. Even I have faced it. कि जब भी हम बच्चे को फीड कराते हैं, like powder milk और normal tone milk और any milk, तो वो puke करता है और बहुत frequently होता है उसका वो vomitings. देखिए आई सी सो मैनी पेशेंट्स इन अ मंथ, मे बी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 पेशेंट की डॉक्टर मेरा बच्चा जितना भी दूध पिलाता हूँ सारा वॉमिट कर देता है. एक एग्जांपल होता था, आप कहते हो हर बात में एग्जांपल देते हैं. एक मेरे पास मदर आई अबाउट 10 days बैक, 5 months ओल्ड चाइल्ड. डॉक्टर साहब जितना दूध पिलाते हूँ सारा वापस.
जब भी मैं दूध पिलाती हूँ सारा इसके पेट में तो कुछ रहता ही नहीं है। मैं सुन रहा था चुपचाप, मैंने बोला चेक द वेट। डॉक्टर साहब आप तो सुन नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ मैंने पहले वेट चेक कीजिए, आपकी बात सुन के मैं सब कुछ करूँगा। आई चेक द वेट, चाइल्ड वॉज 7.5 kgs। आई आस्क्ड व्हाट वाज आवर बर्थ वेट, ये 3 किलो। मैंने जब दूध सारा निकाल के 7.5 हो गया, अगर इसका दूध पेट में रहेगा तो ये तो 75 किलो हो जाएगा बेसिकली। तो देन और इतनी जगह से ट्रीटमेंट ले चुकी थी। देन आई एक्सप्लेन टू द मदर कि रीगर्जिटेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन न्यूबॉर्न पीरियड, वी कॉल इट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बेसिकली। GR बेसिकली मीन्स कि बच्चा जब दूध पीता है उसके साथ दे स्वेलो सम एयर, जब वो एयर निकलती है उसके साथ थोड़ा बच्चा स्पिट कर सकता है। अगर हमारा ब्लड जरा सा भी गिरता है तो हमें लगता है कितना ज़्यादा ब्लड हमारा निकल गया। बच्चा वॉमिट करता है तो मदर को लगता है कितना ज़्यादा वॉमिट कर दिया। तो उसमें वी हैव टू बेसिकली सी द 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज यूरिन आउटपुट। इफ द चाइल्ड इज पासिंग यूरिन 6 times इन अ डे, इसका मतलब है कि चाइल्ड का जितना दूध पेट में चाहिए उतना तो दूध पेट में रह रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा दूध इज कमिंग आउट, नहीं तो यूरिन आएगा नहीं। दूसरा यू सी द वेट गेन। इफ द चाइल्ड इज गेनिंग वेट एडिक्वेटली, इसका मतलब ये है कि जितना दूध चाहिए उतना ही रह रहा है and child requires no treatment. So first you have to check the weight, you have to check the urine output. If the child is thriving well, if the child is growing well, आपको जस्ट मदर को काउंसिल करना है कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे का वेट नहीं गेन हो रहा, देन यू हैव टू पुट द चाइल्ड ऑन मेडिसिन बेसिकली। प्लस बॉटल फीडिंग में भी ये प्रॉब्लम इज क्वाइट कॉमन कि बॉटल फीडिंग में बच्चा ओवर फीड कर लेता है बेसिकली ना। ओवर फीडिंग तो उसमें भी बच्चा ज़्यादा दूध निकलता है, तो उसमें भी ये देखना है वेट गेन एंड यूरिन आउटपुट बोथ आर नॉर्मल, nothing to worry. These are the only key points which you have to consider, and if you see any kind of points in this, so you can visit to your pediatric. As a mother, I must say walker really plays a very important role in our lives, you know, to make our kids sit on it and we are free at least for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. So like, is it the myth that we should not buy a walker or it's true? देखिए ऐसा है कि इंडिया में एवरीथिंग इज फिक्स्ड। जो पैदा होंगे तो साबुन देना है, शैम्पू देना है, सोप लोशंस देना है, हो गया जी। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए जी, इसको कपड़े दिला दो, कोई नाना नानी दादा दादी आते हैं कपड़े ला दो, डायपर ला दो, सब फिक्स है। जब 9 महीने का होता है जी या साल भर का होता है, उसका फंक्शन होता है, तो आधे से ज़्यादा रिलेटिव वॉकर लेके पहुंच जाते हैं जी, और बच्चे को वॉकर दे दो बेसिकली, ठीक है ना। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को अगर हम वॉकर में डालेंगे तभी वो चलना सीखेगा। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने वॉकर दे दिया, मेरा बच्चा तो उसमें चलना सीख रहा है। मैं कहता जी 1 महीने में दे देते, जब भी चलना सीख लेता, 9 महीने क्यों वेट करी आपने? क्योंकि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द माइंड बेसिकली। जब तक माइंड नहीं बोलेगा चलना, जब तक आदमी चलेगा नहीं, जब तक माइंड नहीं बोलेगा बच्चा बैठेगा नहीं बेसिकली। इसलिए मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं ना वो चलते हैं ना तो बैठते हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है बेसिकली। चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग बाय द एज ऑफ 9 to 10 months बेसिकली, राइट। इफ़ यू गो टू US बेसिकली, वहाँ पर जो वॉकर होता है, इट कम्स विद अ वार्निंग कि इट इज़ हैजार्डस टू योर चाइल्ड हेल्थ बेसिकली, इट कैन कॉज इंजुरी। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स उनके 2 ही काम होते हैं, या तो वो सोचते हैं कि बच्चा चलना सीखेगा, सेकेंड थिंग इज़ हर कोई काम करना होता है, घर में सर्वेंट नहीं हुआ या सर्वेंट नहीं हुआ तो बच्चे को वॉकर में बैठा दिया, मम्मी अपने काम में बिजी होगी, फादर तो ऑफिस ही चले गए और ग्रैंड मदर अपना ही है और बच्चा उसमें खेल रहा है। लेकिन वॉकर इंड्यूस इंजरीज आर वेरी कॉमन। आई हैव सीन चिल्ड्रन falling down from first floor while playing in walker. हुआ कुछ नहीं, बच्चा बच गया, वॉकर पलट गया, दीवार से टकरा गया। तो वॉकर इंड्यूस इंजरीज आर वेरी कॉमन, सो बेटर नॉट टू पुट द चाइल्ड इन वॉकर। जब तक अवॉइड हो सके रखो, और कोई अगर गिफ्ट दे तो उसको ऊपर अपने छत पर डाल दो जी, बाद में देखेंगे, या तो आगे उसको गिफ्ट में निकाल दो। COVID-19 can cause rare but life-threatening pediatric condition. Children are considered super spreaders of the disease. बच्चा है कुछ नहीं है, इसको तो कुछ होगा नहीं, तो घर से बाहर ही नहीं गया, तो दे आर सुपर स्प्रेडर्स, पता भी नहीं लगता और दूसरे को बीमारी कर देते हैं। इसलिए जो लॉकडाउन में COVID-19 में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो डॉक्टर्स थे वो पीडियाट्रिशियन थे, कि जो बच्चा है मास्क नहीं लगाता है, बच्चा है जी इसको तो सीजनल खांसी है, इसको तो हर महीने आप देखते हो, आपको पता है सांस की दिक्कत होते रहते, पता लगा डॉक्टर अफेक्ट हो गया और बच्चा ठीक हो गया बेसिकली। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर साहब दवाई बता दो, क्या हो गया जी? बच्चे को खांसी है, लेके आओ जी। हमने तो बच्चे को निकाला नहीं 1 साल से। क्यों नहीं निकाला जी? कोविड की वजह से। मैंने जी हम तो रोज जा रहे हैं जी ऑफिस। मैंने जी आप भी तो डिजीज ला सकते हो, बच्चे को तो आप निकालते नहीं हो, आप लाके बच्चे को स्प्रेड कर सकते हो। तो एक तो बच्चे को भी एग्जामिन करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
क्योंकि बच्चों में पता नहीं लगता कि उनको प्रॉब्लम्स है या नहीं है और वो डिजीज स्प्रेड कर देते हैं। और बच्चों में प्रॉब्लम्स यूजली बहुत माइल्ड होती हैं। मैंने अभी एक ही केस देखा जिसमें बच्चे में प्रॉब्लम थी और उसमें उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था। जो रेयर प्रॉब्लम्स है जो कोविड-19 कर सकता है कि बच्चे को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रीनल प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दीज आर द रेयर conditions. There is a very important, more important now, the more important one more, कि a worms in a child. What is like, how can we identify? Worms infestation is basically common in children. बच्चे हर चीज़ उठा के they put in their mouth, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस हो जाता है, कीड़े चले जाते हैं। Especially children on bottle feeding, because bottle feeding leads to anemia. एनीमिया मतलब खून की कमी से दे स्टार्ट ईटिंग मड, वी कॉल इट पाइका। लोग कहते हैं जो दीवार चाटता है मेरा बच्चा, मिट्टी खाता है, फर्नीचर खाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनीमिया। ठीक है, उसकी वजह से कीड़े चले जाते हैं पेट में। पेशेंट कहते हैं जी कीड़े हैं इसलिए मिट्टी खा रहा है, मैं कहता नहीं जी मिट्टी खा रहा है इसलिए कीड़े चले गए बेसिकली। ठीक है, तो नॉर्मली यू शुड डीवॉर्म योर चाइल्ड वंस इन अ ईयर। बॉटल फीडिंग कम करनी चाहिए। वन कॉमन मिथ इज डॉक्टर साहब मेरा बच्चा रात में दांत किटकिटाता है, मेरे बच्चे को कीड़े हो गए, मेरा बच्चा सलाइवा गिराता है, मेरे बच्चे को कीड़े हो गए, मेरा बच्चा खाता नहीं है उसको कीड़े हो गए, मेरा बच्चा ज़्यादा खाता है उसको शरीर में नहीं लग रहा उसको कीड़े हो गए बेसिकली। So I am one of the mother. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि कीड़े वाली कंपनियों की मौज है, क्योंकि एक पेशेंट जो है अपने बच्चे को दिन एक महीने में 10 बार कीड़े की दवाई, जब कुछ नहीं सूझता तो कीड़े की दवाई से खिला देता है बेसिकली। ठीक है ना, वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। जो टीथ ग्राइंडिंग है बेसिकली, जिसके लिए कॉमनली लोग कहते हैं जी रात में दांत कट जाता है इसके पेट में कीड़े हो गए, टीथ ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है कि अनएक्सप्लेन्ड एंगर और एंजाइटी इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड बेसिकली। बच्चा कुछ सोच रहा है, बच्चे के दिमाग में कुछ है, सुबह टीवी देखा था मम्मी ने बंद करा दिया, दोपहर में किसी से लड़ाई होगी आपने उसको छुड़ा दिया, रात में टीवी देख रहा था मम्मी ने बोला सो जा सुबह स्कूल जाना है, उस एंगर में और एंजाइटी में रात में उसके सपने में चलता है, उसकी वजह से वो दांत किटकिटाता है और लोग सोचते हैं उसको वॉर्म्स हो गए बेसिकली। तो वॉर्म्स से यूजली कोई प्रॉब्लम नहीं होते। वॉर्म्स की मेडिसिन यूजली इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है इट लीड्स टू एनीमिया इन द चाइल्ड, क्योंकि वो ब्लड सक करते हैं और कई बार वॉर्म्स इन्फेस्टेशन होने की वजह से ब्रेन में एक प्रॉब्लम हो सकती है, वी कॉल इट न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। उसके लिए वो बेसिकली कॉमनली वी गिव वॉर्म्स मेडिसिन। टीथ ग्राइंडिंग के लिए नहीं देनी, एक्सेसिव सलाइवेशन के लिए नहीं देनी, लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए नहीं देनी, इफ द चाइल्ड इज नॉट गेनिंग वेट उसके लिए नहीं देनी। Okay, so what is the cause of saliva? तो नॉर्मल है बेसिकली, ड्रूलिंग है बेसिकली, बच्चा है Sometimes you see and sometimes it's like no. सोते हुए बच्चे बेसिकली saliva formation, if they don't swallow it comes from the mouth basically. When newborn child, when we start feeding them with the semi-solids to our kids, so should we avoid salt and sweet from their diet? This is a question every mother is asking. लेकिन what I remember is during my college days या अभी भी जब मैं बुक पढ़ता हूँ कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि डोंट गिव स्वीट एंड सॉल्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो मेरे से जो पेशेंट पूछता है मैं कहता हूँ जी दे दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी वहाँ लिखा है, मैंने जी वहाँ का पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से यू कैन गिव। So we can put sugar on the yes, meal? yes, yes, yes. Fine. ये सब कुछ जो आप लैक्टोजन ये सब कुछ दे रहे हो उस समय तो सुक्रोज सब कुछ है। Sucrose, हाँ। yeah. Is there any thing like which replace sugar? Like instead of sugar you can give this also. This is more helpful and very healthy for a kid. तो शुगर तो बेसिकली sugar है दो चार और- चीज में तो यू हैव टू पुट शुगर। इफ यू आर मेकिंग सूजी की खीर यू हैव टू पुट शुगर बेसिकली। अगर कुछ आप उसको बनाना शेक बना रहे हैं या मैंगो शेक बना रहे हैं या उसमें तो थोड़ी बहुत डालनी So पड़ेगी that आपको। is okay with the thing because kids usually जो भी उनके meals हैं, जैसे आप बोलते हो कि like give them 6 times meal. जब आप अब जैसे आप कहते हो ना reduce the milk हाँ, तो and increase the diet. four solid foods in a day, semi solids or solids basically, whatever. right? हाँ। So what should be the sugar quantity we should keep in mind कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए पूरे दिन में, या ऐसा कुछ है या ये भी मिथ है? मोस्टली तो इंडिया में जो भी बनते हैं सॉल्टी ज़्यादा होती है रादर देन स्वीट्स बेसिकली। इफ़ यू सी वेजिटेबल सूप, एप्पल प्यूरी, इफ़ यू सी दाल, खिचड़ी, वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्टी। राइट। तो मतलब एंड बेबीज दे आल्सो अप्रिशिएट टेस्ट। या उनको आप ये नहीं कह सकते बच्चा इसको कुछ भी खिला दो। नहीं 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 नहीं, they don't even accept if they don't want to have it. When a kid is having a milk,
So a white stool I think he used to do, or green. When the child is born, normally he passes blackish stools during first 3-4 days of life. That is quite normal. If the child is on breast milk till 6 months, if he passes green stools, white stools, yellow stools, all are normal basically. Most of the time. ठीक है? If child is on top feeding, whitish stools may be indication of infection. What is infection? Change in the color, consistency or frequency of the stool basically. Even change in the color may indicate the child is suffering from stomach infection. Greenish stools basically हिंदुस्तान में मिथ है जी. पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे को ठंड लगी. मुझे ठंड तो लगी, हुआ क्या जी? हरे रंग के स्टूल कर रहा है. ये तो प्रैक्टिस में सीखना पड़ता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है बेसिकली. तो ठंड लग गई तो हम तो सोचेंगे खांसी जुकाम हो गया. तो ग्रीनिश स्टूल्स जो हैं मदर फीड में भी कॉमन है. आई हैव सीन चिल्ड्रन आर टॉप फीडिंग, ये लैक्टोज उनमें ग्रीनिश कलर स्टूल्स आर क्वाइट कॉमन. अगर टॉप फीडिंग में ग्रीनिश स्टूल्स है बट इट इज नॉर्मल इन कंसिस्टेंसी एंड चाइल्ड इज फीडिंग वेल, देन इट इज नॉर्मल. White color stools, most of the time it indicates infection. Other thing is basically you can correlate. If the color is green और बच्चा आप कहते हो जो फीड नहीं कर रहा, बच्चा सुस्त हो गया, खाने का मन नहीं है, तो it goes in favor of infection basically. So you have to correlate each and everything, not just by the color of the stool. So it's like not to worry if the kid is changing the colors of the stool. So we just have to keep the eye on the consistency, frequency, activity, feeding of the child, urine output, everything. Doctor, can you give any important message for the kids around? Okay, summers normally we get 3 types of disease. One is jaundice, second is typhoid, and third one is stomach infection basically. तो पेरेंट्स को मेरी यही एडवाइस है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बॉइल्ड वाटर दें, खाने की चीज़ों को ढक के रखें, बच्चे के हाथ रेगुलरली वॉश कराएं और कोशिश कीजिए बच्चे का खाना हाइजीनिक हो और बाहर का फूड अवॉइड कीजिए. एंड हैंड वॉश बिफोर ईटिंग फूड, वेरी इंपॉर्टेंट. So I hope today every mother got satisfied with this video, and if you have any kind of question with Mr. Vashisht, Dr. Vashisht, so he's here with us. You can just write a message, your questions to us for your child, and obviously you can find the in our description box you will find the contact number of Dr. Vashisht and the information about him, so you can directly also contact him. So thank you so much, doctor, for today and making a mother, especially mothers, this will be a very satisfied video. I hopefully you all will be sort out with this video. Thank you, doctor.